I got four offers. One from Mhm. Amazon, Oracle, Palo Mhm. Alto, and one startup was there. So I decided to Uh-huh. choose Palo Alto Networks. But when I was when I took my job at the Palo Alto, I was going through the Google interview process. I was at third round. So I Mhm. after 1 month actually I got selected for Google as well, but they revoked the offer. So that time actually I Mhm. decided to switch the corporate because like Google company was a dream of mine. I So, Bhaiya, welcome to our channel. And can you please give your brief introduction for us? Yeah. So first of all, I would like to thank for calling me here for helping out student, like showcasing my strategy and how I prepared. So talking about my Mhm. introduction, so I started preparation for IIT JEE in 2014 when I was in class 10. So actually, I Uh-huh. got around 3,000 rank in JEE Advanced and 1,500 rank in JEE Main. So I didn't get Mhm. computer science in top 5 6 IIT. So I decided to choose computer science in NIT Suratkal, number two at that time. So I've completed my Mhm. engineering in 2021, and during my Mhm. BTech, I've done internship at ISC Bangalore in second year and in Cisco at third Mhm. year. And I got the Mhm. pre-placement offer from Cisco, and I worked there for 1 year, and I decided to switch. So during my switch, actually, I got four offers. One from Mhm. Amazon, Oracle, Palo Mhm. Alto, and one startup was there. So I decided to Uh-huh. choose Palo Alto Networks. But when I was when I took my job at the Palo Alto, I was going through the Google interview process. I was at third round. So I Mhm. after 1 month actually I got selected for Google as well, but they revoked the offer. So that time actually I Mhm. decided to switch the corporate because like Google company was a dream of mine. I didn't like coding much, Mhm. but I forcefully was doing coding and all so that I get chance opportunity to work at Google. But when they revoked the offer, I thought like the number one company is doing this, then what all others will be doing. So I decided Mhm. to leave the corporate. I started preparing for the government jobs. I was looking for the government jobs in computer science. So I get to know that BARC, ISRO, NILIT, NIC, all these are the jobs which you can get at a good level. Mhm. So I started preparing for all these, and I prepared for 7 to 8 months, and then I gave exam for NIC. Then I gave exam for BARC, then NILIT, and then SBI SO. So I got second rank in NIC, first rank in BARC, and first rank in NILIT. And Mhm. SBI actually I qualified, but I didn't go for interview because I was not interested. I already got a good opportunity in other central government organization. And then many students were saying to me, "You got good ranks here, then why you didn't give GATE?" So at that time I do not Mhm. have any answer because I never prepared for GATE specifically. I prepared at the Mhm. GATE level for this exam. So I thought they of Mhm. giving exam at this time. So I left two to three subjects because they were not in the government exam preparation. So I just gave GATE. I didn't inform anyone like I'm giving. I told I didn't fill the form. But yeah, like I luckily I got a good rank, so I disclosed the rank. Otherwise, I wouldn't have disclosed if I wouldn't have get the good rank. So this was about my introduction. So in the Okay. gate, actually, I got all India rank 8. Hmm. Okay, but the thing was when I texted you at the LinkedIn, so I thought you are from a tier three colleges and Okay. you worked at many companies and you just want to shift from corporate to the government jobs because ऐसा रहता है किसी का कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा बट आपके केस में थोड़ा अलग ही है भाई कि मीन्स Uh-huh. सब कुछ तो मिल रहा था सो व्हाई गवर्नमेंट. So actually, if I tell about my CTC at Palo Alto, it was 65 GPA. So my Mm-hmm. like for me, it was very hard like to come out of that. So I created an environment against the company within myself. I started hating it because I wanted to come out of the corporate Mm-hmm. culture. Because the problem was I see my seniors in the company leaders, they are working like in the midnight 4 a.m 2 a.m. They are like even Mm-hmm. on Friday night they are working 12 a.m. So I thought like if in Mm-hmm. future I need to do the same thing, and I cannot
compromise with the work life balance. For me, it's like if you give me less money, I am fine, but the job timing should be fixed. I do not want to work after that time, Yeah. because Mhm, mhm, because you are earning good money, but you do not get time to enjoy it. So that, and mhm, the kind of work was there in the Palo Alto, the team was dominated from US. So kind of meetings usually happened from 9 to 12, and it was not like it's there in Palo Alto. I was there in Cisco, there mhm, also the same problem was there. I have friends in Amazon, mhm, they also, even in companies like customer facing company Amazon, Flipkart, you cannot celebrate your mhm, festivals because these are the days where all these companies, earn the most. So like this is a mhm, problem, and I am the person who do not give much preference to money compared to work life balance. So that's why I decided to try government, because see, in the government as well, actually 30 is the age limit for general category. So private में mhm, कभी भी I can go back, because I already have experience. I have a good college tag and good alumni network, because from being from tier one. So mhm, when I wanted to go back, I can easily go. But government में क्या है कि 30 के बाद I cannot go. So that's why mhm. I decided to see like if government is good or not. So that's why I switched Okay. from private. ओके, ओके। सो एट मीन्स हम तो जैसे गेट रहा तो जैसे मैं आई मीन थर्ड ईयर, सो आई कैन मीन्स मैंने भी अटेम्प्ट दिया था। सो आपने थर्ड ईयर से थर्ड ईयर में वगैरह नहीं दिया था, या वाज इट दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट कि आपने पहले भी दिया था? नहीं नहीं, मैं लास्ट ईयर फॉर्म भरा था, बट ये बोला था कि हम्म, नहीं नहीं भरा, नहीं भरा। इस बार भी फॉर्म भरा था, बट लास्ट ईयर मैंने दिया हम्म, नहीं था, इस बार मैंने दे दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर तो एक्चुअली एकदम ही गवर्नमेंट लेवल का प्रिपरेशन था, मतलब वो डेप्थ में नहीं था। तो मेरा ऐसा था कि मैं ओ, गेट दूं तो मेरी फर्स्ट रैंक आए, मतलब मेरा 100 मार्क्स का टारगेट था, क्योंकि अभी तक बहुत सारी एग्जाम में मतलब ऐसा ही हुआ है कि जो भी दिए हैं उसमें या 1 या 2 ऐसी रैंक रही है। तो गेट में भी ऐसा था कि, और स्टूडेंट को एक्सपेक्टेशन भी थी, मतलब मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से यहाँ पर मैं डाउट सॉल्विंग करता था, तो उनका ये था कि भैया आप मत दो, एक रैंक अच्छी रहेगी, कम हो जाएगी। तो उनका मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन था सबका कि ये देंगे तो फर्स्ट आएगी। तो वो मैं ये नहीं चाहता था कि वो प्रेशर रहे मेरे ऊपर एग्जाम देते टाइम, कि मैं सबको बता दूं मैं एग्जाम दे रहा हूँ और फिर नहीं आए तो। इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं था, इसी कारण से कि आएगी अच्छी तो बता देंगे, नहीं आएगी तो किसी को पता ही नहीं है। ओ, ओके, ओके। एंड जैसे जैसे अपन गेट के लिए देखे, जैसे आपकी सीएस में रैंक आई, तो सीएस में जैसे 8-9 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वे आपने पूरे ही कंप्लीट किए थे, या वह 5 जैसे 5 वगैरह करके गए थे? नहीं, मैं जैसे सीएस में अगर सब मैथ्स वैथ्स मिला एप्टीट्यूड मिला ले तो 12 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हम्म, 8-9 तो कोर सीएस ही होते हैं, बाकी जैसे हम्म, एप्टीट्यूड, डीएम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो मेरा एक्चुअली क्या था, जेई का बैकग्राउंड था, तो मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कभी पढ़ा नहीं। जो 7-8 साल हम्म, पहले आता था बस वही मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था जॉब के साथ में, आपका हाई प्रेशर वाला जॉब था। हाँ। तो मैं ना नोट्स बनाता था, क्योंकि नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं था। तो मेरा ऐसा हम्म, था कि मेन जो सीएससी के कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे सी डी एस, एल्गो, डीबीएमएस, डिजिटल और कंप्यूटर नेटवर्क, ओएस, ये मेन, और टीओसी भी ठीक था, बस कंपाइलर डिजाइन थोड़ा मतलब उतना नहीं करा था। सीओ मैंने बिल्कुल नहीं करा था, बेसिक जो कैश वगैरह होता है, मतलब सीओ 40% बोल सकते हैं कि आता था थोड़ा बहुत। और हम्म, जैसे डीएम बिल्कुल नहीं करा था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था मेरे को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये था कि थोड़ा जेई का थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा लीनियर अलजेब्रा नहीं आता, कैलकुलस आता है वैसा। तो मेरा कंप्लीट नहीं था सिलेबस, मैं सिर्फ ऐसे ही देख के आया था। तो मतलब इवन मार्क्स भी, मतलब बस ये था कि एक्यूरेसी मेरा स्ट्रॉन्ग था, मतलब मेरा 3 सब्जेक्ट में 100% एक्यूरेसी है, सी डी एस एल्गो में। डीबीएमएस में 90% हम्म। एक्यूरेसी है, अभी इसमें जो गेट दिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में ओ, 80% एक्यूरेसी क्रेजी। है। तो ये था कि जो मैं करके आया, मतलब इवन जो मैं टेस्ट देता था, बहुत सारे एआईएमडी देता था, तो उसमें क्या था, मेरे को मार्क्स हमेशा 70 से 80 आते थे, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने छोड़े थे वो 20-25 मार्क्स के थे। मतलब मेरा था कि आउट ऑफ 80 ही पेपर है, तो मेरे को 77-75 ऐसे आते थे टेस्ट में। और मेन गेट में भी रो स्कोर था वो 77 ही था, क्योंकि सेट 2 था, तो वो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गया वो, क्योंकि मेरा सेट 2 में रैंक 3 था गो के प्रेडिक्टर में। तो पर ये था कि वो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि सेट 2 एक्चुअली थोड़ा अब बोल रहे हैं कि लोग हार्ड है अभी तक का सबसे, और लेंदी है, तो वो भी बेनिफिट हुआ। अरे वाह! मीन्स आर यू वर्किंग राइट नाउ एनीवेयर एट द हाँ, अभी कॉर्पोरेट? मैं भी 2 महीने पहले मैंने स्विच, मतलब गवर्नमेंट में स्विच किया। इसके पहले प्राइवेट में था, मैं पालो अल्टो में दिसंबर तक काम किया था। अभी मैं नाइलिट में साइंटिस्ट बी की जॉब पे काम कर रहा हूँ, कोलकाता। कोलकाता एज़ अ हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर? हाँ हाँ, लेवल 10, मतलब जो आप यूपीएससी क्लियर करते हो ना, उसमें भी आप लेवल 10 बनते हो, बस ये कि यहाँ पावर नहीं है, बाकी है वही जॉब। ओह भाई भाई!
एंड मेरे को बताना कि जैसे पहले मीन्स आपने कोई छुट्टियां वगैरह तो नहीं ली होंगी, जैसे आपका कन्वर्सेशन से मेरे नहीं, को पता चल लोग रहा। मतलब मैं जो कॉर्पोरेट में काम करता था वो बोलते थे कि तुम बैंगलोर में हो, तुमको कोरमंगला नहीं पता। एक्चुअली बैंगलोर में बहुत फेमस प्लेस है कोरमंगला। वो मैनेजर वगैरह मजाक उड़ाते थे कि कर क्या रहे हो, तो अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है इतने अच्छे पैसे की। वहाँ मतलब मेरा वहाँ इंटरेक्शन जीरो रहता था, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा ये रहता था कि कैसे भी टाइम मिले तो मैं अपना पढ़ूँ, डाउट सॉल्व करूँ या सोल्व करूँ। मैं 1 साल बैंगलोर में रहा हूँ, उसके पहले वर्क फ्रॉम होम ही करा था, तो वहाँ 1 साल में मैं एक दिन भी हम्म। घूमने नहीं गया। ये था कि जिम विम करके ओ। आ जाते थे, थोड़ा आसपास घूम के आ जाते थे, बट मैं बैंगलोर घुमा ही नहीं बिल्कुल। बस ये था कि आउटिंग वगैरह होती थी, तो जब पूछते थे कौन सी लोकेशन पे जाए, अब मुझे पता ही नहीं है, मैं गया ही नहीं। वो बोलते तुम करते क्या सैटरडे संडे पे, घूमो। ओके। पर एंड मेरा ये था ना कि मीन्स। मेरे को यहाँ रुकना ही नहीं है, तो गोल कुछ और था, तो फिर उस हिसाब से। ओ। ओके ओके ओके। जैसे आपकी जॉब रहती थी, तो फिर आप घर में जाके वही कोर्स सब्जेक्ट्स वही रूटीन रहता था, या फिर लगे मैं पड़ो जॉब ऐसे जॉब 11th 12th? जॉब करने जाता ही नहीं था मैं। मुश्किल से 5 दिन का होता था, 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस था, 2 दिन फ्रॉम होम था। मैं वो 3 दिन में भी एक ही दिन जाता था। गाली खानी पड़ती थी मैनेजर से, बट ठीक है। अब अपना एम ही जो है वो, मतलब मैंने पूरा रिस्क लिया था वो वाला, कि मेरे को छोड़ना ही है, मेरे को वहां जाना ही है। तो वो थोड़ा रिस्क था, मतलब हाई रिस्क था। मैं अटेंडेंस कम था, मेरा 33% अटेंडेंस था। तो कंपनी वो में? प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, कंपनी में। अरे फिर ओके कभी ओके। लीव वगैरह एंड ले ली, वो सब यूटिलाइज करा था। ओके ओके। एंड फिर जैसे गेट के लिए जैसे कोर्सेज रहते हैं, जैसे पीडब्ल्यू की हम बात करें, वहां से मैंने भी कोर्स लिया था। तो फिर आपने भी कोई कोई ऐसे कोर्सेज किए थे, या ऑल अबाउट फ्री रिसोर्सेज जो भी ऑनलाइन है उठा लिया और पढ़ लिया, वैसे कुछ था आपका? मतलब इनिशियली जो बिगिनिंग मैंने करी थी वो तो यूट्यूब से करी थी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। बाहर के तो मैंने, हम्म। और बाहर को एनआईसी तो यूट्यूब से ही पढ़ा था, कुछ पढ़ा ही नहीं था। हाँ हाँ। उसके बाद क्या होता था ना, मैं जो डाउट सोल्व करता था उससे पीवाईक्यूज के अलावा कुछ होता नहीं था डाउट सोल्व। जैसे किसी कोचिंग का कोई वर्कबुक का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा डेप्थ में होते हैं वो सब, तो मैं हम्म पहले ऐसे बुराई करता था कि ये कोचिंग का मटेरियल मत करो, क्योंकि मुझसे सॉल्व नहीं होते थे ना। तो बोल रहे कि गेट में आता हम्म ही नहीं है ऐसा वाला, पीवाईक्यूज ही आते हैं, पीवाईक्यूज ही करो। बट फिर मैंने सोचा कि हम्म पढ़ के देखते हैं। फिर मैंने, मतलब मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं लिया था मैंने। जो बहुत सारे स्टूडेंट से कि मुझे एक्सेस दे देते थे, कि जैसे मेड इजी का किसी ने एक्सेस दिया तो मैंने उसका कर लिया, या फिर किसी ने ओ। पीडब्ल्यू का एक्सेस। इवन टेस्ट सीरीज भी मैं हर कोचिंग की टेस्ट दी है, बट मैं किसी में एनरोल नहीं था। सबसे बस मैं रिक्वेस्ट देता था, क्योंकि मैं डाउट सोल्व करता था ना, तो वो सब बहुत मतलब बोलते थे कि आप हमारी बहुत मदद करते हो, आपको जो चाहिए आप बताना, किस कोचिंग का चाहिए रहेगा तो ये दे देना। हम्म तो ऐसे करके मेरे को हर कोचिंग का एक्सेस था काइंड ऑफ मेरे पास में। इसलिए मैं हर कोचिंग के एक ओ। प्रोग्राम में भी जा रहा हूँ, आपको हर वीडियो में दिखूंगा मैं। तो क्योंकि मैंने हर किसी से पढ़ा है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। बस ये कि मैंने हम्म खरीदा नहीं है, स्टूडेंट ने मुझे, मैंने किसी को बोला कि इसमें थोड़ा मुझे पढ़ना है ये टीचर का, तो उन्होंने मुझे एक्सेस दे दिया। हम्म तो इस टाइप से मैंने किसी ने, मतलब हर किसी ना किसी कोचिंग से पढ़ा है। इवन एआईएमटी का भी मैंने अभी पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे, लगभग 5 से 6 कोचिंग के एआईएमटी दिए थे मैंने, क्योंकि वो तो फ्री होते हैं, और सभी में मेरा टॉप 10 में था। तो मेरा यही था उस पोस्ट में कहना कि एआईएमटी देने चाहिए। लोग डर जाते हैं मतलब एआई, क्योंकि वो रियलिटी बताएगा आपको गेट के पहले। 1 महीना है आपके पास इम्प्रूव करने के लिए, तो मैंने वो एआईएमटी वगैरह दिए थे। मतलब इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि एक कोचिंग से पढ़ा है स्पेसिफिक, हर कोचिंग से जो बेस्ट टीचर है किसी का वो पढ़ने से पढ़ा है। हम्म। ओ। ओके ओके। एंड जैसे आपकी रैंक AIR 8 आई, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? कि कम थी, आपका टारगेट 1 था? मतलब पहले जो मैं एग्जाम देके आया, फिर मैंने रिस्पॉन्स ही डाली थी नॉलेज गेट के रैंक ब्रेकर पे, तो मैं खुश हो गया था कि 77 आ कैसे गए। उस समय नहीं पता था कि सेट टू हार्ड है या इजी है, नॉर्मलाइजेशन होगा। बस मेरा ये था कि 77 पे कैसे आ गए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 60-65 आ जाएगा, क्योंकि 80 मार्क्स का तो मुझे आता था, 75-80 का, उसमें से 10-15 तो गलत होगा ही, तो 65-60 कुछ आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है 77। फिर मैंने देखा कि रैंक बता रहा है, मेरी 5th रैंक बता रहा है। मैं चौंक गया कि भाई ऐसी रैंक कैसे आ जाएगी। मेरे को लगा कि गलत है भाई, 5th हम्म रैंक नहीं आएगी 77 पे। पर ये मेरे को था कि लास्ट ईयर एक बंदे की 77 पे 62 आई थी, तो टॉप 100 में आ जाएगी। हम्म फिर मैंने सोचा कि बताऊं कि नहीं बताऊं, लोग तो सोचते हैं कि फर्स्ट रैंक आएगी, तो मैंने सोचा कि नहीं बताएंगे। फिर धीरे धीरे और प्रेडिक्टर देखे तो सभी मेरा टॉप 10 में बोल रहे थे, तो अंदर से खुशी भी हो रही थी। बट फिर क्या हो रहा था ना, बीच में बोल रहे थे कि सेट 2 के 3 क्वेश्चन गलत है, और वो तीनों मेरे सही थे।
मेरे को डर लग रहा था कि ये अगर ये बोनस कर दिया आईआईटी ने तो फिर टॉप 100 के बाहर गया। तो ओह! पर ये था ओके, कि ओके। लकीली वो क्वेश्चन बोनस नहीं करे आईआईटी ने, तो रैंक तो वही रही। बट हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब जो प्रिपरेशन थी उस हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने करी नहीं थी उस टाइप की प्रिपरेशन। मैं कंपाइलर डिजाइन हुँ, 1 साल पहले पढ़ के गया था, कुछ रिवाइज ही नहीं करा था मैंने। हुँ, हुँ, डाउट हुँ, सॉल्व करता था बेसिस पे, जो लिख के आ गया मैं। ओह! ओके, ओके। एक क्वेश्चन था मेरा कि एज़ फ्रॉम जब आप कॉलेज से पास आउट हुए, तब आपकी जॉब एक अच्छे कंपनी में, एक अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लगी। जैसे सिस्को आपने बोला जैसे, यू हैड वर्क फॉर 2 इयर्स इन द सिस्को। सो व्हाट इज़ द वन थिंग यू वांट टू टेल दैट कि ये ऐसा था कल्चर कि अच्छा था, बुरा था, इसलिए मैंने छोड़ा, वैसे कुछ तो भी बताइए? सिस्को में एक्चुअली 1 ईयर करा था और पालो अल्टो में 2.7 ईयर्स करा था। मतलब सिस्को में हुँ, मोर प्रिसाइज 11 मंथ ही करा था मैं। एक्चुअली क्या था सिस्को में, मैं जिस टीम में इंटर्नशिप करी थी वो टीम मुझे बहुत हुँ, हुँ, पसंद थी, बट जब ज्वाइन करा फुल टाइम उन्होंने दूसरी टीम असाइन कर दी, वो मुझे पसंद नहीं आया, वो जो जिस टीम में असाइन करा। मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट है AI ML में, और उन्होंने इंटर्नशिप उसी में कराई थी, पाइथन वगैरह। हुँ, अब इन्होंने यहाँ दे दी किसी स्काला लैंग्वेज, मैंने नाम नहीं सुना, और मार्केट में भी उतना नाम नहीं है उसका, थोड़ी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है में, और वो समझ भी नहीं आई, इसलिए हाँ, यही हाँ। रीजन था छूटने का। मेरे को समझ ही नहीं आई पूरे 11 महीने जितना भी काम किया। तो हुँ, मैं, एक तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि इन्होंने धोखा दे दिया, कि वही टीम में दिया ही नहीं जिस टीम में करी। और उसके बाद ओके। क्या था कि एक अंदर से थोड़ा चुभा था कि जब सिस्को इंटर्नशिप के लिए आया था तो 32 LPA था, CTC। हुँ, मतलब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मेरे जो सीनियर प्लेसमेंट में बैठे हैं उनके लिए 32 है। पर जब वो, हुँ, उसके बाद कोविड आ गया और जब वो वापस से आया, मतलब जब मैं फुल टाइम के लिए, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा इतने का, तो उन्होंने रिड्यूस करके कर दिया 25, स्टॉक्स हटा दिए। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ से मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा, मैंने कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं करी, और मैं सोचा कि 32 मिल जाएगा, उन्होंने कर दिया रिड्यूस। अब ना मुझे कोडिंग आती है ना प्रैक्टिस करी, अब मैं, और कोविड का टाइम है तो रिस्क भी नहीं ले सकते कि भाई होगा कि नहीं होगा, कंपनीज कम आएंगी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने धोखा दिया, इन्होंने 32 से 625 हुँ, कर दिया, उसकी वजह से मैंने पढ़ा भी नहीं कुछ। अब मैं रिस्क भी नहीं ले हुँ, सकता कोविड के बारे में, तो अब मुझे वो हुँ, जबरदस्ती लेना ही पड़ा। फिर वहां जाके मैं पहले दिन से ये था कि उनको छोड़ना ही है। तो मैं स्टार्ट ज्वाइन करते ही स्टार्ट कर दिया कि प्रिपरेशन वगैरह, कोडिंग वगैरह। तो मेरा क्या था, 3rd ईयर तक मुझे सी प्रोग्रामिंग भी नहीं आता था, सिस्को में जैसे तैसे लग गया। पर हुँ, मुझे नहीं आता था, मतलब ये था कि थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे हो गया, बट मतलब 3rd ईयर तक कुछ नहीं सी प्रोग्राम। मतलब बहुत सारे लोग वो ऐसे थे कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में गूगल में इंटर्नशिप करके आ रहे हैं यूएस में, ऐसे वाले लोग भी थे हमारे कॉलेज में। मुझे तो हाँ, 3rd ईयर मैं तक नहीं पता कुछ भी। तो इसीलिए मेरा ये था कि 1 साल लगा कोडिंग करने का। मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं अभी तक इसमें आ गया हूँ, क्या होगा मुझसे, होगा ही नहीं। मुझे कोडिंग हुँ, पसंद हुँ, नहीं थी, बट स्टिल 1 साल तक बहुत ज़्यादा कोडिंग करके 5 6 7 8 घंटे डेली पूरी रात में, मतलब अब वर्क फ्रॉम होम था तो आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको, बीच बीच में हुँ, टाइम मिल हुँ, जाता था। तो बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, मैंने लीड कोड वगैरह किया था, लगभग 500 550 क्वेश्चन लीड कोड पे करे थे, 400 क्वेश्चन गीक्स पे करे थे। तो वो हुँ, करके मतलब मैंने ना कोड फोर्सेस किया कभी, ना कोड शेफ किया, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है इन कंपनीज के लिए। हुँ, हुँ, 2 3 कंपनीज हुँ, है जैसे डायरेक्टली, कोडनेशन और न्यूटेनिक्स वगैरह, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव कोडर ही चाहिए उनको, वो टफ पूछते हैं। बट 99% कंपनीज का आपका लीड कोड से हो जाता है। तो मैंने हाँ, वही करा था, हाँ, सिर्फ वही दिन भर वही करते रहता था, क्योंकि गूगल वगैरह इनमें चाहिए था मेरे को। तो उसके ओके, बाद क्या ओके, हुआ था, ओके। पालो अल्टो से ऑफर, इसलिए मेरा छोड़ना था, रीजन वो छोड़ने का ये था कि मेरे को लगा कि आई फील चीटेड। और फिर हुँ, हुँ, प्रोडक्ट भी पसंद नहीं आया जहाँ पर मैं काम कर रहा था, टैग स्टैग वगैरह, उसके लिए मैंने स्विच करा था। ओके, ओके। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे को कि अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सो आर यू ट्राइंग टू चेंज समवेयर एल्स और ट्राइंग टू स्विच समवेयर एल्स, और यहीं पे आप सेटल होना है? नहीं, रहना गवर्नमेंट में ही है, गिरना मुझे हुँ, PSU में जाना है, मुझे एमटेक करना है अभी फिलहाल तो। बट हुँ, ये है हुँ, कि जो मैंने बताए थे कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, तो उनमें से एक नाइलिट का आया था तो ज्वाइन कर लिया, अभी दूसरा आएगा तो हुँ, मैं हुँ, दूसरा देखूंगा। बस ऐसे ही। अब एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो एज लिमिट है गवर्नमेंट जॉब में 30 है। तो अभी जो हुँ, मेरी पोस्ट है ना, वो हाईएस्ट पोस्ट है 30 की एज में, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते एंट्री लेवल पे।
तो अभी मैं हम्म, इससे ऊपर नहीं जा सकता, अभी इसी लेवल पे अदर हम्म, ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता हूँ अगर जाना होगा तो। एलिजिबल नहीं हूँ मैं अभी एज के हिसाब से। तो बस वही है कि अगर ओके चाहेंगे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी नाइलिड में है तो एनआईसी में चले जाओ, एनआईसी में है तो डीआरडीओ में चले जाओ। बस ये है कैसे घूम सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है वो हाईएस्ट है 30 की एज तक। ओके ओके I got it. Okay, okay. So thank you, Bhaiya, for coming here and sharing your wonderful insights. And I hope it will be like wonderful information to our audience and to me. Actually, it is actually a great thing. कि भाई AIR it is not a simple thing. Anyone can achieve. And once upon congrats for that thing to you. या थैंक यू सो मच। सो एक एक चीज मैं एंड में बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट मतलब क्या रहता है कि वो भटकते रहते हैं एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग पे। मतलब उन्होंने कुछ कहीं से पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा नहीं समझ आया, एकदम से दूसरी कोचिंग जाने लगते हैं, फिर वहाँ का कुछ पढ़ा, फिर दूसरी कोचिंग। तो मेरा ये है कि जो भी कोचिंग एक ली है वो उस पर स्टिक करो। टाइम लगता है हर चीज में, थोड़ा टाइम दो। कोचिंग उतना मैटर नहीं करता, कोचिंग का कंट्रीब्यूशन 20% होता है, 80% होता है आपका प्रैक्टिस और टेस्ट। जैसे कि मैं इतने सारे डाउट सोल्व करता था इतने सारे ग्रुप्स में, मैंने पढ़ा, मैंने रिवाइज भी नहीं करे सब्जेक्ट 3 3 महीने तक, कुछ कुछ तो एक एक साल थे। बट इन द एंड आपको वाइवा नहीं देना है गेट में, वो मार्क करके आना है, आंसर आना है, वो मैं करता रहता था रेगुलर, डेली। तो जितना प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा मैटर करेगा, कोचिंग उतना मैटर नहीं करेगा। किसी भी एक से पढ़ लो, बाकी आपको वही प्रैक्टिस से ही सीखना है, कोचिंग भी पूरा पढ़ा के नहीं देगा। तो ये है कि आप भटको मत, किसी भी कोचिंग को पकड़ लो, जरूरी नहीं कि पकड़ो, फ्री भी हो जाता है। तो एक कोचिंग से करो, उसके बाद उसका थ्योरी पढ़ा, एकदम से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद पीवाईक्यूज करो, मिनिमम 4 से 5 बार पीवाईक्यूज करो पूरे गेट के पहले। मैंने तो 10 से 12 बार करे हुए थे, मेरे को क्वेश्चन भी याद है, आंसर भी याद है, क्योंकि लोग पीवाईक्यूज ही पूछते हैं डाउट में। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इस बार सेट 1 देखना पूरा पीवाईक्यू बेस्ड था, सेट 2 में भी बहुत सारे पीवाईक्यूज थे। तो पीवाईक्यूज का मतलब बहुत ज्यादा रोल है, आप उसको करो और ज्यादा भटको मत इधर से उधर, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। तो यही एक सजेशन है। Okay, okay, okay. Thanks, Bhaiya, for coming here. Yeah, thank you so much.